Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Union Minister Piyush Goyal praised the production linked incentive scheme as one of the most successful initiatives of the Modi government. Marking its 10-year celebration under Make in India, he estimated an investment of 1.3 lakh crore rupees across 14 sectors, with the potential for over 2 lakh rupees. Based on ongoing discussions, Goyal expressed optimism that additional production could exceed the expected 11 lakh crore rupees, driven by both domestic demand and exports. If you could give us a clarity on the investment figures that you were talking about, 1.3 lakh crore has already been achieved, and how much do we expect it? Can we expect our investment to go up, and which timeline? Production linked incentive is one of the most successful programs that Prime Minister Narendra Modi's government has launched under the Make in India initiative, which we are celebrating 10 years in this week. We had estimated that in the 14 sectors, about 1,32,000 crores will be invested. But based on our repeated interactions, every 6 months DPIIT holds an interaction with all the sectors. Last 6 months ago we had met in Bharat Mandapam, today we met here. We'll have another engagement with the other companies. Our estimate is we could look at an investment of upward of 2 lakh crores being seeded through the production linked incentive scheme. It was our expectation that we'll see additional production of about 11 lakh crores. But hearing some of the numbers today, my own sense is both for domestic demand and for export, the production also will be much more than we had expected. And these sectors are now getting kick-started. So much so that now they are in a position to invest even without further support into the component manufacturing ecosystem, because demand has started getting generated. So you also talked about some product being rebranded and being sold in India, and you also talked about... I didn't talk about, somebody had complained that they had 1 or 2 instances. I said they should make a complaint about it. Achieving 2 lakh crore is by the end of this financial year, or overall that we have? Overall, we are talking about the overall PLI scheme. That is the investment. You mentioned in the last one and class 4 that criteria might be relaxed. What is that? My one of the points today was a very open house. Every sector gave their suggestions, what we could do more to support them. One of the issues that came out was that in government procurement, there could be a few amendments required sectorally, not overall. Overall, the policy is the same. But there are certain sectors where the ecosystem takes time to develop. And initially, the domestic value add is less, but gradually goes up. I thought that was a good suggestion, and I've asked my officials to examine it, whether we could have a roadmap for these sectors through which they can transition from class to become a class 1 or a class 2 supplier. So there's some relaxation in quality approvals as well. So that is across. One point that came out in today's discussion, again, which I thought merited consideration, is for those manufacturers who produce a certain product for the first time in India. And normally in procurement, we have a requirement for prior experience. And obviously, if they are making it for the first time in India, or there is an innovation which is happening for the first time in India, it is very difficult to have a prior experience. So I have asked such sectors to get back to us with details so that we can take some technical expertise and advice and see whether that same product can be through laboratory testing or other means can be made eligible to start supplying, being a new product or an innovative product without prior experience. सर आज पीएम मोदी के 10 साल पूरे हुए हैं मन की बात कार्यक्रम को, सर उसको लेकर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो Delhi Minister Saurav Bharadwaj emphasized that it is a constitutional tradition for ministers and MLAs of the elected government attend the swearing-in ceremony of State's High Court Chief Justice. He expressed disappointment that LG of Delhi did not deem the elected government
worthy of attending, calling the situation very unfortunate. देखिए, नारायणा के इस पॉश इलाके की मेन रोड पे शाम के 7 बजे हाथ में पिस्टल लिए गैंगस्टर इस शोरूम के अंदर घुसते हैं। यहां में काम करने वाले के सर पे बंदूक लगाते हैं, बोलते हैं कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती दो, रंगदारी दो, और 24 राउंड इनके शोरूम के अंदर फायरिंग करते हैं। गाड़ियों के बोनट से आर पार गोलियां निकली हुई हैं। और ये मामला सिर्फ यहां नहीं, दिल्ली के अंदर 3 जगह इस तरीके की वारदात हुई है। 6 पार्टनर हैं जो इस शोरूम को चलाते हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वाइफ है, परिवार है, हर आदमी परिवार का डरा हुआ है। और मन में उनके अब ये सवाल आ रहा है कि क्या भारत हमारे लिए सेफ है। ये सवाल आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम अपने जवान बच्चों को प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते? क्या दिल्ली में हमने कभी सुना था कि इस तरीके से गैंगस्टर सक्रिय हो जाएंगे जो रंगदारी मांगेंगे, प्रोटेक्शन मनी मांगेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे? ये कैसे संभव हो रहा है दिल्ली के अंदर? और वो गैंगस्टर जो जेल में बंद हैं, वो कैसे इतने बड़े बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं? केंद्र सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, एलजी विनय सक्सेना साहब की जिम्मेदारी है, वे क्या कर रहे हैं? आज एलजी साहब को यहां आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? Gujarat CM Bhupendra Patel highlighted that India has become the 5th largest economic power under PM Modi's leadership. He noted that the Lagu Udyog Bharati is focused on the interests of industry and the nation, supporting initiatives like Poppies of Doing Business and Make in India that promote self-reliance. Patel emphasized the organization's role in boosting production, employment and guiding small industries, particularly in manufacturing large mobile phones. લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી ગુજરાત દ્વારા આયોજિત ક્ષેત્રીય સમ્મેલન 2024ના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અખિલ ભારતીય સંગઠન મંત્રી શ્રી પ્રકાશચંદ્ર ગુપ્તાજી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી ઘનશ્યામજી ઓઝા, ગુજરાત અને રાજસ્થાનના પ્રભારી શ્રી બળદેવભાઈ પ્રજાપતિ, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ સજ્જન, કર્ણાવતી સંભાગના પ્રમુખ શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, મહામંત્રી શ્રી સંદીપભાઈ શાહ, વડોદરા જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી વિરલભાઈ ચૌધરી, મંચની સામે ઉપસ્થિત અમારા સાથી અને મુખ્ય દંડક શ્રી બાલુભાઈ શુક્લા, સાંસદ શ્રી હેમાંગભાઈ જોશી, મેયર શ્રીમતી પિંકીબેન સોની, ધારાસભ્ય શ્રીમતી વનિષાબેન વકીલ, શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા, લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના સૌ સદસ્યશ્રીઓ, આમંત્રિત મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બન્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતની 10 વર્ષની આર્થિક વિકાસ યાત્રામાં ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવ્યું અને ભારતમાં અનેક નવા ક્ષેત્રો માટેના દ્વાર ખુલ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ આત્મનિર્ભર ભારત, ઉન્નત અને વિકસિત ભારતનો મંત્ર આપ્યો છે. કૃષિ, સેવા અને ઉદ્યોગ ત્રણેય સેક્ટરમાં સર્વગ્રાહી વિકાસ દ્વારા વિકસિત ભારતથી રાષ્ટ્રહિતને શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ પ્રાથમિકતા આપી છે. ઉદ્યોગ હિત સાથે રાષ્ટ્રહિતનો વિચાર કરતું સંગઠન લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી
આત્મનિર્ભર ભારત અને મેક ઇન ઇન્ડિયા માટે અવિરતપણે કાર્યરત છે. આ બે હિતનો સમન્વય કરીને તાલમેલ જાળવીને ઉદ્યોગ વિકાસથી રાષ્ટ્ર વિકાસ માટેના સામૂહિક મંથન ચિંતન માટે લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીએ કરેલું આયોજન આજનું આ આયોજન અભિનંદનીય છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ એવા વિઝનરી લીડર છે કે જે કોઈને ન સૂજે તે નરેન્દ્રભાઈને સૂજે. તેમણે ભારતની આયાત ઘટે અને નિકાસ વધે તે માટે દેશમાં એમએસએમઈ ઉદ્યોગ માટે ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ અને તેના માટે મેક ઇન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાવી. તાજેતરમાં જ મેક ઇન ઇન્ડિયાને 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને આ 10 વર્ષમાં ભારત મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇનોવેશનનું પાવર હાઉસ બન્યું છે. સ્પેસથી લઈ સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ જેવા ક્ષેત્રોમાં દેશ આગળ વધ્યો છે. સાથે જ વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચર પણ બન્યો છે. લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી અને તેની સાથે જોડાયેલા તમામ ભારતની આ વિકાસ યાત્રાના આપણે સૌ સહભાગી છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્ર પ્રથમની JKNC Vice President Umar Abdullah reported receiving information about administrative interference in the election, but stated that he does not expect any assistance from officials. He expressed confidence that with the strength of their party, they can win the election without relying on the administration's support. Assalamu alaikum. जोड़ा था उनको कश्मीरी लोगों ने अपना चौधरी साहब आगे बढ़ो. जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, जनाब चौधरी मोहम्मद चौधरी साहब वापस लाएंगे. अगर इनके पास है तो मैं इनके साथ जुड़ जाऊंगा. जो आदमी पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे साथ क्या जुड़ेगा? आज तक आपने कहीं उसको कहते हुए सुना है कि वो बीजेपी की मदद नहीं करेगा? जब जब उससे ये सवाल पूछा गया है कि आप इलेक्शन के बाद क्या बीजेपी की मदद करोगे या नहीं, वो कहता है मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं. जो पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ हम मिलके क्या करेंगे ना? आपकी कसम खा रहा है कि मैं बीजेपी के साथ मेरी सरकार नहीं बनेगी. हाँ ना, उसने तो हर तकरीर में कहा है कि वे उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं. कहा मिडिल ईस्ट में तो कई लीडरों ने अभी तक ये मनसूख किया उसका असर इलेक्शन में कंपेन में पड़ेगा. कैंपेन तो आज खत्म हो गया और वैसे भी अब आज 5 बजे सारा सिलसिला खत्म होगा. जहाँ तक वहाँ पे जो हालात हैं हम सब उन हालात को लेके परेशान हैं. 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा जबकि इजराइल के तरफ से गाजा पे फलस्तीन पे हमले शुरू हुए. हमने पहले दिन से ये मांग की दुनिया की बड़ी ताकतों से, अपने मरकजी हुकूमत से, वजीर आजम से कि मेहरबानी करके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो बेगुनाहों को वहाँ पे मारा जा रहा है, जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है उसको रोकें. आज वहाँ पे जंग के बादल नजर आ रहे हैं. हम दुनिया की ताकतों से दोबारा मांग करेंगे कि मेहरबानी करके इजराइल पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ की बमबारी रोकें. चाहे वो गाजा में हो, पूरे फलस्तीन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो, जहाँ जहाँ ये बमबारी चल रही है इन ताकतों को अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस पे रोक लगाना चाहिए. बार बार एक कहते हैं मुझे उमर अब्दुल्ला और सजा मिलने जी किस तरह आप ये देखते हैं? मुझे जनाब इक़्तिदार से बाहर रहे अब 10 साल हो गए. जरा शेख रशीद साहब, क्योंकि मैं इंजीनियर अब उनको बुलाता नहीं हूँ, डिप्लोमा किया है, जरा बताएं वो गिरफ्तार कब हुए? गिरफ्तार हुए वो 2019 में जब हम सब बंद थे. उनके खिलाफ गवाही किसने दी? आज अगर हम 1 सेकंड के लिए माने
कि उनको गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ जो स्टार विटनेस है, जो गवाही जिसने दी, कहा कि मैंने रशीद को लिफाफा पकड़ते हुए देखा है, वो कौन है? जो आज उसका तर्जुमाने आला है, क्या ये वही बंदा नहीं है जिसने रशीद के खिलाफ गवाही दी? अब क्या मजबूरी है ना, आप जिस बंदे ने आपके खिलाफ गवाही दी, उसी बंदे को आप अपने तंजीम का तर्जुमाने आला बनाते हो। कहीं ना कहीं तो जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा ना, दाल में कुछ काला है ही है। लोकसभा इलेक्शन में साफ शफाफ क्या इस बार उम्मीद तो है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कहीं दखल देने की भी जो है शिकायतें आ रही हैं। और जैसे चौधरी साहब ने अपनी तकरीर में वाजिया तौर कहा, लेकिन अब हम किसी अफसर से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इलेक्शन में हमारी मदद करें। अल्लाह के फजल से हमारी तंजीम में इतनी ताकत है कि हम अफसरों के बिना इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो अफसर जो दूसरों की यहाँ इलेक्शन में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अफसरों को यहाँ भेजा गया है इलेक्शन से एक दिन पहले यहाँ पे दूसरों की मदद करने के लिए, वो अपनी हरकतों से बाज आए। क्या एक्सपेक्टेशन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने? Union Home Minister Amit Shah claimed that the decade under Congress was marked by favoritism towards families and the exploitation of Dalits and backward classes. In contrast, he highlighted the BJP's tenure as a period focused on youth development, good governance and the advancement of 36 communities without any financial mismanagement. की बात करते हैं, किसानों के कल्याण में हमारी सरकार भावंतर योजना भी लाई। भाइयों बहनों, हमने रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन देने का कार्यक्रम किया। पीएम सूर्यघर योजना से 5 लाख घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमने कई सारे नए वादे किए। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल में इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, वो मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, आपको कांग्रेस वालों को पूछना है। हमने 24 घंटा बिजली 92% गांवों में पहुंचाई। एक्सपोर्ट को 3 गुना करा। प्रति व्यक्ति आय 1,38,000 थी, हमने 3,26,000 कर दी। वृद्ध पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। विधवा पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। दिव्यांग पेंशन, अपाहिजों का पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। सीएम विवाह योजना, सगुन योजना 31,000 थी, 31,000 थी, हमने 71,000 करने का काम किया। आंगनवाड़ी आप 7500 रुपया छोड़कर गए थे, हमने 14,000 किया। आशा वर्कर आप 500 छोड़कर गए थे, हमने 6,000 करने का काम किया। भाइयों बहनों, विकास के मामले में कांग्रेस का नाम शून्य है। हमने 93,000 किसानों को मेरा ब्यौरा मेरी योजना में हमने ले लिया और हर किसान को मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। कमल फूल की सरकार बना दो, अब 6,000 की जगह 10,000 रुपया भेजने का काम भाजपा करेगी। 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल हेरिटेज सर्किट बनाकर हमने टूरिज्म बढ़ाया। महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए 30 करोड़ रुपया दिया। नारनौल में 5800 करोड़ से और महेंद्रगढ़ में 866 एकड़ में बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं और महेंद्रगढ़ में 15 खेल नर्सरियां बनाने का काम हमने किया।
किया। हम आने वाले दिनों में महेंद्रगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा हब बनाने वाले हैं। जोर से ताली बजाना। एक नया मेडिकल कॉलेज भी महेंद्रगढ़ में खोलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। ओलंपिक के लिए टैलेंट सर्च का बड़ा सेंटर बनाएंगे। एक अत्याधुनिक सभागार 3500 सीट वाला महेंद्र। Congress MP Kumari Srilja stated that Pradeep Chaudhary, the Congress candidate from Kartla, has overcome numerous challenges and consistently supported the public. She claimed the BJP has conspired against Congress leaders and expressed confidence that voters would support the Congress candidate in large numbers. जैसा कि आपने कहा कि सबको प्यारे भी हैं और बहुत बहादुर भी है, एक बार दोबारा ये बात कहेंगे कि किस संदर्भ में इन्होंने अनेकों चुनौतियों का सामना किया है। जब ये विधायक थे अभी हमारे वर्तमान में इनके साथ जो हुआ साजिश को पद से किया, विधायक पद से इनको हटाया गया विधायक पद से, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी, इन्होंने इनका पूरा साथ दिया। जिस तत्परता से जैसे राहुल गांधी जी के साथ किया था, राहुल गांधी जी का घर छीना सब कुछ किया। हमने देखा भाजपा कैसे काम करती है, कांग्रेस के लोगों के खिलाफ इन्होंने कैसे किया, प्रदीप जी के साथ किया, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी और हिम्मत नहीं हारी, हमारा वापस हासिल किया। और अब इस वक्त लोगों के दरबार में हम हैं, सब खड़े हैं, प्रदीप जी के लिए वोट मांग रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग पहले से भी ज्यादा इनका साथ देंगे और ये भारी बहुमत से कालिका से हम। एक बात जो ज्ञानचंद गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि नेफ्ट को हम लेके आए हैं, शिलान्यास हमारे टाइम पे हुआ। ऐसा है, दोबारा इन्होंने कई चीजों का शिलान्यास कर दिया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे नेफ्ट हो या कुछ। आपको याद होगा उस समय हम नेफ्ट लेकर आए थे, उसकी रिपोर्ट बनवाई, आपको सारी स्टोरी पता है उस समय जब हम इसकी आधारशिला रख कर गए। अब एक चीज का इन्होंने अपने समय में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए पूरे हरियाणा में, हमने की तो क्या बात करें, बल्कि जो था हमारा वो भी छीन लिया, HMT छीन लिया। कुछ करने को दिखाने को तो है नहीं, वही चीजें गिना रहे हैं, ना काम किया है ना लोगों के साथ जुड़ाव रखा है। तो अब जनता इसी इंतजार में 10 साल बाद कि हम इनको बाहर करें और अब सरकार हमारी बनेगी, हमारे विधायक बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में बापू बेटा जो है वो इस अपने देख रहे सीएम के दलितों के लिए जेल का दरवाजा बंद है। जो 7 गारंटी कांग्रेस ने दी है उसमें खास तौर पर STF की बात की गई है, ड्रग्स एरेडिकेशन के लिए, और काल का काम भी गई। इसके साथ साथ अपनी बीमारी में सब में ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है हमारे युवाओं के लिए, और युवाओं के साथ साथ पूरे परिवार एकदम विनाश की ओर चले जाते हैं। हम सोच सकते हैं कि आगे हमारी बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, समाज का क्या होगा। तो इसकी पूरी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार ने सच से सच कदम उठाए। HMT को वापस लेके आ पाएंगे? देखो, HMT का मामला केंद्र के साथ भी संबंधित है। वायदा किया है कांग्रेस ने कि उन्हें सभी को नौकरी दी जाएगी जब वो फौज से निकल जाएंगे, पूरी का कार्यकाल पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये अग्निवीर जो इन्होंने हमारे सेना के लिए भी और हमारे युवाओं के लिए भी, सैनिकों के लिए भी, सबके लिए एक मजाक सा बना दिया, कहने को बोल रहे और का सैनिक अगर शहीद होता है इसी से जुड़ा सवाल है, जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए क्या करेंगे? यही मैंने कहा कि बहुत बड़ी बात है, ऐसी स्कीम वो भी है सेना के ऊपर भी, और ये मैंने कहा है जब हमारी सरकार BJP MP Ravi Kishan responded to SP Chief Akhilesh Yadav by emphasizing the significant developments in Gorakhpur, including the inauguration of
the largest Pepsi plant, the establishment of 5-star hotels and increased film shootings. He urged Yadav to acknowledge these advancements. Additionally, Kishan asserted that the BJP aims to reclaim Pakistan-occupied Kashmir, stating that it was taken from India through deception and expressing confidence in recovering it after forming a state government. बरसात तो होती है, बरसात में पानी आता है, पूरा विश्व को दुबई डूब जाता है, लंदन डूब जाता है। बरसात धुआंधार 48 घंटे नॉनस्टॉप रही, लेकिन बरसात आज रुकी तो सब पानी उतर गया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, आप बहुत समझदार नेता हैं, बड़े लीडर हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि यहीं पर आज हमने इंडिया के सबसे बड़े पेप्सी के प्लांट का उद्घाटन इसी गोरखपुर में किया। यहाँ 12,000 करोड़ का निवेश तो खाली गीडा इंडस्ट्री में हुआ है। 5-स्टार होटल की कतार है, फिल्म शूटिंग का हॉलीवुड बन चुका है, सारी शूटिंगें फिल्मों की यही होती है। रोजगार चरम सीमा पर है, सैनिक विद्यालय से लेके 4 महाविद्यालय हैं, एम्स है, प्रधानमंत्री जी द्वारा एम्स फर्टिलाइजर दिया गया। चीनी कारखाने जो आपकी सरकार में सारे कारखाने बंद थे वो शुरू है। गोरखपुर आज नजीर पेश कर रहा है, सबसे ज्यादा यात्री यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। नया रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन बन रहा है, 500 करोड़ का नया एयरपोर्ट, 1200 करोड़ का नया भवन बनने जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी कभी गलती से तारीफों कर लिया करें, लेकिन एक बात बता दें कि गोरखपुर में सब हो, यूपी में सब हाँ माफिया नहीं के बाड़न अखिलेश जी, कि मालूम है भाव लोग कहाँ चले। पीओके तो लेना ही है, सही कहा हमारा। ये तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा, पीओके तो हमारे को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उन लोगों ने लिया था धोखे से, उसको तो लेना ही है। जैसे सरकार बनेगी कुछ ही महीना में ले लिया जाएगा। बरसात तो होती है, बरसात में पानी आता है, वो पूरा विश्व हो, दुबई डूब जाता है, लंदन डूब जाता है। बरसात धुआंधार 48 घंटे नॉनस्टॉप रही, लेकिन बरसात आज रुकी तो सब पानी उतर गया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, आप बहुत समझदार नेता हैं, बड़े लीडर हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि यहीं पर आज हमने इंडिया के सबसे बड़े पेप्सी के प्लांट का उद्घाटन इसी गोरखपुर में किया। यहाँ 12,000 करोड़ का निवेश तो खाली गीडा इंडस्ट्री में हुआ है। 5-स्टार होटल की कतार है, फिल्म शूटिंग का हॉलीवुड बन चुका है, सारी शूटिंगें फिल्मों की यही होती है। रोजगार चरम सीमा पर है, सैनिक विद्यालय से लेके 4 महाविद्यालय हैं, एम्स है, प्रधानमंत्री जी द्वारा एम्स फर्टिलाइजर दिया गया। चीनी कारखाने जो आपकी सरकार में सारे कारखाने बंद थे वो शुरू है। गोरखपुर आज नजीर पेश कर रहा है, सबसे ज्यादा यात्री यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। नया रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन बन रहा है, 500 करोड़ का नया एयरपोर्ट, 1200 करोड़ का नया भवन बनने जा रहा है। तो अखिलेश यादव, That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English.